Hi students, in this lecture we are going to discuss about the method of measurements of distance. Distance measurement. First of all, we will discuss about the method of measurement of larger distance. So here we are going to discuss about method of parallax. Method of parallax. Now, first of all, in method of parallax, we need to understand what is parallax. Suppose this is a point you are observing, and this is the first position from where you are observing, and you are looking this point from point A. This is our object. In that case, it will appear at this place. Suppose this is point P, and when you have changed your position to B and you are observing the same object, this will appear at position Q on its background. When we are observing the object from two different points A and B, then location on its background changes from P to Q. So we can say that when object is observed from different position, then its location on its background will be shifted. This is known as parallax. So parallax is change in position of object on its background due to change in position of observation. Is known as parallax. That's when the parallax is the process in which the object position will change on its background. This is called parallax. Now this method, this parallax, will be used to measure a larger distance, like the distance of a star or galaxy from the earth. Now parallax is a method based on measuring two angles and the sides of triangle formed by the star earth on one side and the other side 6 months later. Astronomers find the distance of nearby stars in the space by using a parallax method. Now see here, this is the position of earth in July, and we are measuring the position of this one star. Then the ray is going in this way and its position is noted P behind this star, and after 6 months, when earth position change in January, the position of the same star is noted at Q. Now this is distance of star. It may be in astronomical unit and this is in parsec. इट्स मीन बैकग्राउंड की जो पोजीशन है स्टार से वो बहुत ही दूर है, और ये वाली दूरी जो है ये दूरी कम है और ये दूरी बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत लार्जर डिस्टेंस है. इसी का यूज किया जाएगा जिससे हम स्टार की पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे. तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक सर्कल हम लोग लेते हैं कोई, ये बड़ा सा एक सर्कल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है. अब यहाँ पे हम एक इसका रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं. ये हो गया एक, और एक रेडियस वेक्टर और इसके लिए ड्रॉ करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से. ये है पॉइंट ए
और ये है पॉइंट बी और ये है एंगल थीटा। सपोज दिस इज एंगल अल्फा। नाउ अब हम यहां से एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास हो गया सेंटर सी, एंगल ए एंड बी, एंड दिस इज एन नॉर्मल ऑन द लाइन सी ए। जब हम साइन थीटा की बात करेंगे या टेन थीटा की, सपोज हम टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है बी एंड एन डिवाइडेड बाई बेस की बात करेंगे तो हो जाएगा सी एंड एन। अब हम यहां पे एंगल अल्फा लिए हुए हैं, नॉट द थीटा, सो टेन अल्फा इक्वल्स टू बी एन बाई सी एन। जब हम इसको और स्मॉल करते हैं, जब इसको स्मॉल किया जाएगा, बहुत स्मॉल एंगल हम रखते हैं इसको इस तरीके से कुछ, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी, डी पॉइंट, और डी से यहाँ पे नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एन प्राइम है और ये एंगल हमारा है थीटा, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा दिस इज इक्वल्स टू डी एन प्राइम अपॉन सी एन प्राइम। देखिए थीटा अगर स्मॉलर हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, थीटा वेरी स्मॉल, इन दैट केस अगर थीटा एंगल स्मॉल करेंगे तो जो डी एन है, एन प्राइम विल बी क्लोजर टू ए। एन प्राइम ए के क्लोजर होगा तो हम लिख सकते हैं डी एन प्राइम इज इक्वल्स टू डी ए, और डी ए को हम बोल सकते हैं आर्क लेंथ। क्या बोल सकते हैं इसको? आर्क लेंथ। सो हमारे पास टेन थीटा की जो वैल्यू होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, इट्स मीन डी ए अपॉन सी ए, क्योंकि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और ये यहाँ पे हमारा इसके बराबर आ जाएगा, इस दूरी के बराबर। अब देखिए आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जो होता है, सी ए यहाँ पे रेडियस है, सी ए ये रेडियस है हमारे पास, और ये क्या आर्क लेंथ। तो हम जब एंगल की बात करते हैं तो प्रीवियसली हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एंगल होता है वो होता आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा इन द केस व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, नियरली इक्वल्स टू, मतलब इसमें क्लोजनेस बहुत होगा, टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो जरा एक बार वापस आते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ से एक दूरी हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल हमने यूनिट लिया, ये वाली, और ये वाली दूरी भी हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ कि सन से अर्थ के बीच की दूरी जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। नाउ अब यहाँ से ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत स्मॉल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट डिसाइड करते हैं जहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पे हम लोग किसी एक पॉइंट से जा कर के स्टडी कर रहे हैं। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट को नोट किए हैं, इस पॉइंट को, एंड अगेन सेम पॉइंट से हम लोग इसको नोट करते हैं। ये दोनों डायमीटर के अपोजिट पॉइंट पे है एंड दिस एंगल इज थीटा, और ये जो दूरी है हमारे पास ये d के बराबर है, कैपिटल D, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, एंड ये हमारे पास है डायमीटर ऑफ दिस प्लैनेट, स्मॉल d। मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर हमारा है जो कि किसी दूर स्थित प्लैनेट को देख रहा है, तो उसकी जो लाइन ऑफ साइट जो एक्सट्रीम डायमीटर की पोजीशन पे जा रही है वो थीटा एंगल सब्सटेंड कर रही है। एंड थीटा जो है, थीटा इज वेरी मच स्मॉल, और इसकी वैल्यू जो है वो रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि थीटा, ये जो दूरी हमारे पास होगा ये किसके बराबर होगा? लगभग रेडियस का
इसको लेके चलेंगे, डी रेडियस का एक सर्कुलर पाथ लेके चलेंगे तो कुछ इस तरीके से वो जा रहा होगा, आर्क लेंथ के बराबर होगा। डी किसके तौर पे ट्रीट किया जाएगा, आर्क लेंथ के तौर पे, क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉलर है यहाँ पे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सो थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई कैपिटल डी, जहां पे स्मॉलर डी क्या है, उस प्लेनेट का डायामीटर है, एंड कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस है ऑब्जर्वर के पॉइंट से। तो इस तरीके से थीटा विल बी इक्वल्स टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो ये मेथड या तो प्लेनेट के डायामीटर के बारे में हम निकालने के लिए यूज किया जाएगा, या फिर हम उसकी डिस्टेंस भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप you got this point. Thank you.